Okay. Shall we settle down? क्या हम अपने अपने जगहों पर बैठ जाएं? जल्दी जल्दी आ जाएं अपने अपने जगहों पर। So now, the initial 5 chapters that we did dealt with the basics of establishing a marriage relationship. और जो हमने अभी तक जो 5 पाठ पढ़े हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन के जो सतह में जो होने वाली बातें हैं उसके बारे में हमने सीखा था। Now, the next few that we are going to look at is things that are ongoing in a marriage. और हम जो आगे देखेंगे वो कार्य है, बातें हैं जो शादीशुदा जीवन में जारी रहने वाला है। So, we are looking at the chapter on communication. अब जो हम देख रहे हैं वो अध्याय है संवाद नहीं तो बातचीत। Now, communication is very essential for a good, strong relationship. और एक अच्छे रिश्ते के लिए बातचीत या संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। So, I have a question for you. आपके प्रति मेरा एक सवाल, How is communication in marriage different from communication in office setting? और एक कार्यालय में और एक शादीशुदा जीवन में दो जगह पर बातचीत अलग कैसे है? समझ में नहीं आया? शादीशुदा जीवन में और कार्यालय में जो बातचीत होता है, संवाद होता है एक दोनों लोगों के बीच में, उन दोनों में अंतर क्या है? Okay, all right. Nice one. Okay. Yeah, discussing about skills that is related to the professional things. But in the personal life, we are discussing anything like going out, like what we need, our thoughts, sharing. So that is some closeness, even listening to professional things. Professional becomes a boundary. It cannot go beyond that. Very good. Okay. All right. Okay. Now, there are different levels in communication. संवाद में जो है, बातचीत में जो है, अलग अलग चरण है। The most basic level in communication is when you communicate to your milkman. और सबसे जो तह पर जो बातचीत का जब आता है वो है आपके दूध वाले के साथ। How do you communicate to your milkman? आपके घर में जो दूध लेके आता है उस व्यक्ति के साथ हम कैसे बातचीत करते हैं? पानी कम है, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है। Right? It is a very casual conversation. वो है जो अनौपचारिक रीति से किया जाने वाला बातचीत है। How are you? How are your children? How's your wife? How much of milk did you sell today? आप कैसे हैं? आपकी पत्नी कैसी? आपके बच्चे कैसे हैं? कितना दूध आपने बेचा? So you're not sharing very much of details in that communication. और उस बातचीत में जो है आप जो है बहुत सारी बातों को गहराई से नहीं बांट रहे हैं। Unfortunately, some marriages have communication like that. और दुखपूर्वक कुछ शादीशुदा जीवन में इस प्रकार का बातचीत का तरीका भी होता है। Is that so? Have you seen? क्या आपने ऐसे देखा है? Yeah. Okay. The second level of communication is a very professional way of speaking.
दूसरा जो बातचीत करने का तरीका है वो है व्यवसायिक रीति से। That is, you only share some facts or some information or some details. That's all. और वहां पर क्या होता है, कुछ तत्वों को, कुछ बातों को, विचार धारणाओं को ही आप बांटते हैं। Like the husband and wife will only talk about which school to send the child, which hospital to go. और पति पत्नी के बीच में उसी विषय पे बातचीत होगा, बच्चों को किस स्कूल में दाखिला करना है, किस अस्पताल में जाना है। Right? So that's a professional one. उसको कहते हैं व्यवसायिक रीति से बातचीत करना। The next level is the friendship level of communication. तीसरा क्षेत्र जो है वो चरण जो है वो है मित्रता के हिसाब से, Where you are sharing your feelings, your thoughts, your ideas. जहां पर आप अपने भावनाओं को, अपने सोच विचार को और अपने अनुभवों को आप एक दूसरे के साथ बांटते हैं। That's how you will talk to a very good friend. और वो तरीका है जो आप एक करीबी दोस्त के साथ जब बातचीत करते हैं। But what is expected in marriage is to have an intimate level of communication. एक पारिवारिक जीवन में, एक शादीशुदा जीवन में उम्मीद ये है होता है एक गहराई भरा या घनिष्ठता के साथ जो है आप में और उसमें एक बातचीत होने पाए। It is a place where you can share anything without mincing your thoughts or your ideas or your words. और वहां वो एक जैसा जगह है जहां पर आप कोई भी मिलावट के बिना आप अपने विचार धारणाओं को रख सकते हो। So we should always aim at having an intimate level of communication in our marriage. और हमें हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक घनिष्ठता के साथ आप जो है अपने शादीशुदा जीवन में बातचीत करें। So for a healthy communication in marriage, there are three things that are necessary. स्वस्थ एक वैवाहिक जीवन बिताने के लिए कुछ बातें हैं। One is time, एक है समय, two is trust, दूसरा भरोसा third is transparency. और तीसरा है पारदर्शी। So let's look at each one. एक एक करके हम देखेंगे। Time. समय, So if you want to establish a good connection with someone, you need to spend time with the person. अगर एक व्यक्ति के साथ आपको एक अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। So for those of you who were married, think of your initial few months in marriage. और आप में से जो नए रीति से शादीशुदा है वो लोग सोचे, थोड़ा ध्यान से सोचे कि जो पहले समय था, आरंभ का समय, उसके बारे में थोड़ा सोचे। How often did you talk? कितनी ज्यादा आप बातचीत करते थे? नए से जो शादी हुए हैं बहुत ज्यादा. बहुत After ज्यादा। some time, what happens? कुछ Are you समय, married? हाँ, You're married? Oh, okay. All right. After some time, what happened? और कुछ समय के बाद क्या होता है? What did you say? No value. It's a saying, idiom, Oh, it's an so idiom. which cannot be translated. Okay. All right. Right? So that's what generally happens. वो है जो स्वाभाविक तरीके से होता है। But for a good, strong relationship, we should be intentional about spending time to communicate. और एक अच्छे रिश्ते के लिए के प्रति हमें जोर देकर जो है समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करना सीखना चाहिए। So set aside regular time to talk. और एक समय को हटाकर रखें जहां पर आप हर दिन बात कर सकते हैं। And that talking should not be about what to buy, where to go, how to do something. और वो समय जो बातचीत का है इसलिए नहीं होना चाहिए कि कहाँ जाएंगे, क्या खरीदना है, वो सब के लिए नहीं होना चाहिए। But plan more intimate conversations. और थोड़ा और घनिष्ठता की बातों के विषय में बातचीत करें।
Okay, the second one is trust. दूसरा है भरोसा। Now, how can you trust in communication? और एक दूसरे के ऊपर बातचीत के बीच में कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? When someone tells you a secret, जब कोई आपको एक गुप्त बातें बोलता है, if you were to go tell somebody else, अगर आपको वो बात किसी और को जाके बोलना है, or if you would use that conversation again at another point, और अलग समय में इसी बात को आप उसको इस्तेमाल में लाएं, then you are losing the trust in communication. और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप वो बातचीत में या संवाद के जो भरोसा है उसको खो देते हैं। So when someone is sharing something with you openly and honestly, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ और खुले मनोभावना के साथ कुछ विषय को आपके साथ बांटता है, they are doing with absolute faith in you. और आपके ऊपर लगाए हुए विश्वास के साथ वो करते हैं, And you should do your best not to break that trust. और वो भरोसे को ना तोड़े करके हमें कोशिश करना है। So your spouse needs to be able to trust you with information or whatever they want to share. और आपका जो जीवन साथी जो है उस विश्वास, उस भरोसे के साथ उनकी बातों को आपसे बांटना है। Also, when you say that you will do something, और जब आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, you should be willing to do that. Otherwise, they will not be able to trust you. और आप में इतना क्षमता होना चाहिए कि आप वो करें, नहीं तो आप पर वो भरोसा नहीं रहेगा। So trust has to be earned and it has to be given. और भरोसा जो है वो कमाना पड़ता है और वो देना भी पड़ता है। Okay? ठीक है। And the third one is transparency. और तीसरा है पारदर्शी। Transparency is being able to share your innermost thoughts, your dreams, your aspirations without keeping back anything. और किसी भी चीज को छिपा रखे बिना आपकी सोच विचार, आपकी भावनाएं, आपकी योजनाएं, इन सबको बांटना। Okay? All ठीक right. है? Now, how does communication make a strong marriage? और किस प्रकार से बातचीत जो है हमारे पारिवारिक जीवन को एक मजबूत बना देता है। Because one, it helps you understand and know each other. एक है कि एक दूसरे को समझने में वो सहायक बन जाता है, It helps you work together as a team. और वो एक टीम के जैसा काम करने में हमें सक्षम करता है। It helps you to encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में सहायता करता है, It helps you to resolve problems with one another. और एक दूसरे के साथ जो परेशानी है उसका समाधान निकालने में सहायक होता है। It helps to grow spiritually. वो हमें आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता देता है। It helps to build the intimacy in your marriage. और आपके पारिवारिक जीवन में एक घनिष्ठता को बनाने में सहायक बनता है। And it helps to bring up children together. और एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को बढ़ाने में सहायता करता है। So it's very important to learn how to communicate. और ये बहुत जरूरी है कि आप जान जाएं या सीख जाएं कि बातचीत कैसे करें। Now, communication has two parts. बातचीत में जो है या संवाद में दो भाग है। What are the two parts? दो भाग क्या है? दो भाग क्या है? Okay. Listening and speaking. सुनना और बोलना। Now, how do you listen? किस प्रकार से आप सुनेंगे? Active listening. पूर्णता, एक्टिव। Now, when you're listening to somebody, we often make the mistake to talk more than we are listening. और जब हम किसी की सुनते हैं हम एक गलती कर देते हैं कि हम दूसरों को सुनने से ज्यादा हम ज्यादा बोल देते हैं। You know, that's why God gave you 2 ears and 1 mouth. इसीलिए परमेश्वर ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है। No? इसीलिए दिया है So that you will listen more ताकि आप ज्यादा सुने or less. और कम
बात करें Okay. So how do you listen? और किस प्रकार से आप सुनेंगे, किस प्रकार से आप सुनना है, What is dhyan say? Explain it to me. और वो ध्यान से उसको थोड़ा विस्तृत रीति से बताए, नहीं तो उसको थोड़ा और Huh? पेशेंस, With patience. Okay. So what does that Sahanshil. mean when you say you listen with patience? आप सहनशील होकर सुनना है करके उसका मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग पेशेंस? मेकिंग Miscommunication. That means you should not interrupt. Huh? Okay. Listening with patience is not interrupting. सहनशीलता के साथ सुनना मतलब बीच में कोई अड़चन ना डाले बिना सुनना. Okay. Keep nodding your head. Okay. सिर को हिलाते रहना. Okay. Then उसके बाद और कुछ पूरे मन से सुनना. Okay. Pay attention. Full pay attention. ध्यान लगाकर Not सुनना, looking at your mobile phone अपने मोबाइल फोन की ओर ना ध्यान देते हुए, or read the newspaper या फिर पत्र को, or see the cricket match या फिर क्रिकेट गेम को देखे बिना, or make chapati. या फिर चपाती बिना बनाए. Right? So you pay attention. वो ध्यान देना. So, sometimes when I ask question, people will not keep eye to eye contact. They will look like this. और जब मैम कभी कभी कुछ सवाल करती है लोगों से, तो वो लोग जो है उनके आंखों में नहीं देखेंगे, वो नजर झुका के बैठे रहते हैं. Right? But when you're talking, you should be looking eye contact. लेकिन आप जब बातचीत करेंगे तो आपका उस दूसरे साइड में बैठे हुए व्यक्ति के साथ नजर मिलना चाहिए. What happens when you don't give eye contact? क्या होता है जब आप उनके साथ नजर ना मिलाएं? No concentration. Then, huh? You're avoiding, ध्यान ना देना, उनको not तिरस्कार करना, interested. रुचि ना रखना, They feel neglected. तिरस्कार की मनोभावना. Correct. Okay. So communication should, when you're saying attentive, it is as if you and the other person is the only one in the room. और बातचीत का मतलब ये है, और ध्यान से बातचीत का मतलब ये है कि उस कमरे में आप और उस व्यक्ति के अलावा कोई भी नहीं है. So you should also, when you are listening carefully, you're not just listening to the words, you're also listening to the body language. और आप जब सुन रहे हैं ध्यान से, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप कान से सुन रहे हैं, आप उनके शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको भी ध्यान दे रहे हैं. Okay, so sometimes when you talk to people, you ask them, how are you? और जब आप कभी किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, They will say, I'm very fine, but the way that they say it in their faces don't look that they are fine. और कभी कभी वो लोग बोलते हैं हम बहुत ठीक हैं, लेकिन उनके चेहरे में जो भाव आता है जब वो बोलते हैं, वो ऐसा दर्शाता है जो ठीक नहीं है. Okay, but it is when you are listening carefully, you are also listening to the facial expression, to the body language that helps you understand better. और जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तब आप उनके चेहरे का भाव को भी देखते हैं, उनके शरीर का जो भाव है उसको भी ध्यान देते हैं. Another factor of listening carefully और दूसरा एक तत्व जो है सुनने में, is not to interrupt. वो है रुकावट ना डालना. Let them finish talking and then take your chance to talk. उनको अपना बातचीत खत्म करने का मौका दे, उसके बाद आपका अभिप्राय बताएं. And you should listen to understand, not to retort or to give back. और आप समझने के लिए सुने, ना कि उनको पलट कर जवाब देने के लिए. Okay? ठीक है. All right. Second one is speaking. दूसरा है बोलना. Now there are
different ways how people choose to express. और अलग अलग तरीके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने भावनाओं को दिखाने के लिए. So sometimes people express emotionally. और कुछ लोग जो है भावनात्मक रीति से अपने आप को दिखाते हैं. But sometimes other people only express by facts. और कुछ लोग जो है अपने आप को दिखाते हैं तथ्य बताते हुए. Some people are very talk a lot, speak a lot, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं. and some speak very little. और कुछ लोग होते हैं कि कम बातचीत करते हैं. But in marriage, you should give space for the other person also to express, even when there are these kind of differences. और इस प्रकार के विभिन्नता होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को अपने शादीशुदा जीवन में दूसरे व्यक्ति को भी अपना अभिप्राय बताने का मौका देना चाहिए. Okay, what are some things we should be careful about when we are speaking? और क्या वो बातें हैं जिसके हम ध्यानपूर्वक होने चाहिए जब हम सुन रहे हों. Let's be careful not to use words that are insulting. और ऐसे बातों को या शब्दों को इस्तेमाल ना करें जिसके द्वारा दूसरों को ठेस पहुंचता हो. Can you give me an example? क्या आप लोग कोई एक उदाहरण दे सकते हैं मुझे? कोई उदाहरण? Okay. Come on. Example? उदाहरण? Share something to the husband or wife. Don't teach me. I know much better. Okay. All right. You don't teach me. I know better than you. मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है. कभी कभी ऐसा बोलते हैं. Huh? Keep. Okay, you do your own work. अपने Okay. काम से मतलब रखो. Insulting. How can you be insulting? दूसरों को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? Okay. 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 Very good. All right. So, yes. So be careful not to use insulting words. ध्यानपूर्वक रहें कि आप जो है दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली शब्दों को इस्तेमाल ना करें. There is no need to shout while you are speaking. और बातचीत जब कर रहे हो ऊंची आवाज में चिल्लाने की जरूरत नहीं है. Or using, when I say nice language, I mean bad language. और गलत भाषाओं को, अश्लील भाषाओं को ना इस्तेमाल करें. Okay, because it will break the spirit of the other person. और वो जो है उसके अंदर की अच्छी भावनाओं को तोड़ देगा. So use only words that are good for the person to hear. और वो शब्दों को इस्तेमाल करें जो दूसरे व्यक्ति को सुनने में अच्छा लगे. Okay, all right. Now in marriage, we should be aware of what can break down communication. हमें शादीशुदा जीवन में ये ध्यान देना है कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन को तोड़ सकता है. So when you fear that whatever you are going to be say is going to be judged, it can break down communication. और जब आपको समझ में आ जाता है मैं कुछ भी बोलूं उसका न्याय किया जाएगा, जब आप ऐसा सोचते हैं तो वो चीज जो है आपके शादीशुदा रिश्ते को तो या बातचीत को तोड़ देता है. So can you give me a statement of judgment that you may tell your spouse? आपके जीवन साथी को आप कुछ बोलें तब वो एक न्यायकरण करते हुए आपके प्रति बोलने वाली एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं. शादीशुदा लोग ज्यादा जानते हैं. खुद बोल दो. Did you understand? No.
So, what is the statement? I said that communication can break down if you fear that you will be judged when you say something. जो आपका बातचीत है वो टूट सकता है जब आपके मन में ये सोच है कि जो कुछ मैं बोलूं वो गलत रीति से लिया जाएगा। चलो ऐसे Give बोल, me an example. एक उदाहरण दीजिए। How do you know that when the homemaker says certain things that the husband says, why you are saying, do you know how the money is being earned? Okay, yes, all right. Okay, good. Did you understand what she, can you say that? वो जैसे गृहिणी जब अपने पति से किसी विषय को बोलती है तो वो पति एक जवाब देता है, तुम्हें क्या मालूम कैसे कमाई किया जाता है, कैसे पैसा बनाया जाता है, इस रीति से बोलना। So you feel criticized. आपको लगता है कि आपका विरोध किया गया है। Yes? I cook something, say something, so she can say that bana do. Okay. If you wanted to eat, cook it. Go it. Okay. All right. Yes. So the fear of being judged or criticized can break down a communication. और जो मैं बोलूं उसका न्याय किया जाएगा या उसके विरोध में बोला जाएगा, ये जो मनोभावना अंदर होने के कारण आपके बातचीत के रिश्ते को वो तोड़ देगा। So, or if you fear that something that you tell your spouse will be used against you when you have a fight, that can also break down communication. और वो बातें आपके मन में कि जो मैंने उनसे बोला है आगे चल के जब हम में तर्क वितर्क होगा उसको गलत रीति से इस्तेमाल किया जाएगा, ये सोच भी आपके वैवाहिक जो बातचीत का समय है उसको तोड़ देगा। There can be, if you are disinterested, if you don't pay attention, or if you are always preoccupied in something, then then communication can again break down. और आपके मन में पहले से ही कुछ चीजों के बारे में सोच विचार है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बातें भी आपके बातचीत के रिश्ते को तोड़ सकता है। Or if you're too busy that you don't have any time to make conversations, again, that also spoils conversation between a couple. और अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, वो भी आपके बातचीत के रिश्ते को तोड़ सकता है। The last one is if you choose to hide your feelings. और आखिरी है अपने भावना को छिपा कर रखना। Then again, there is no open and direct communication. वहां पर एक पारदर्शी रीति से एक खुला बातचीत भी नहीं है। Okay? Now, where can you practice better communication? Where can you? Where? When? Where? कहां पर आप एक अच्छे बातचीत को अभ्यास में ला सकते हैं? He says before marriage. Yes, before marriage. सही बोला, शादी के पहले। किसके साथ? किसके साथ? You can learn to communicate with each other. एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए सीख सकते हो आप। Because don't wait for marriage to learn how to communicate. और शादी के लिए इंतजार ना करें कि मैं सीखूंगा या सीखूंगी कैसे बातचीत करना है। Start right away. और अभी से शुरुआत कर लें। Maybe it's your friends, हो सकता है वो आपके दोस्त के साथ हो, मित्र your के साथ, family, आपके परिवार में हो, your teachers. आपके शिक्षकों के साथ हो। Learn how to communicate. आप सीखें कि किस प्रकार से उनके साथ संवाद कर सकते हैं या बातचीत करेंगे। And ask your friend how you communicate. और आप अपने दोस्त से पूछें कि मैं किस प्रकार से बातचीत करता हूं। Ask them, am I a good listener?
उनसे पूछें क्या मैं अच्छा सुनने वाली हूं या सुनने वाला हूं। Do I maintain eye to eye contact while I'm speaking? और मैं जब बातचीत कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं आपके साथ नजर मिलाकर कर रहा हूं, कर रही हूं। Am I impatient when I'm speaking? मैं मुझ में क्या सहनशीलता है जब मैं आपसे बातचीत करती हूं या करता हूं। Am I more understanding? क्या मैं ज्यादा समझती हूं या समझता हूं। Am I boring? क्या मैं आपको थका देती हूं या थक देता हूं। So begin to learn to communicate right now. अभी से बातचीत करना शुरू कर ले, सीख ले। Okay? ठीक है। When you get married, let your wife or your husband have a good time for communication. और आप जब शादीशुदा हो जाएंगे, आपके पति या पत्नी को एक अच्छा समय आपके साथ मिले जिसमें आप बातचीत कर पाए। Done? ठीक है। Lots of homework for marriage and family. और शादीशुदा जीवन और विवाहिक जीवन के लिए बहुत सारा आपको घर पे काम करने लायक चीज दिए गए हैं। Okay. The last part we are going to look at is the spiritual side of communication. और आखिरी भाग जो हम देखेंगे वो है आत्मिक भाग जो इस बातचीत में है। Now, the words that we use has a lot of spiritual impact. और जो वचन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत आत्मिक अर्थ हैं। So we need to understand that there is spiritual significance in the words that we use. और हमें जानकारी करने की जरूरत है कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आत्मिक बातें हैं। So our words connect us to the spiritual realm and it will affect our present as well as our future. और जो आत्मिक मंडल है उस पर प्रभाव डालेगा जिस प्रकार का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। Okay, so we're going to look at a few verses to really see the spiritual law of communication. हम कुछ परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि ये आत्मिक प्रभाव के विषय में। Let's look at Proverbs chapter 18 verses 20 and 21. नीति वचन 18, 20 और 21। जो कुछ आप कहते हैं उनके परिणामों के साथ आपको जीना होगा। आप जो कहते हैं उससे या तो जीवन की रक्षा होती है या वह बर्बाद होता है। अतः आपको आपके शब्दों के परिणामों को स्वीकार करना होगा। Okay, so what does it say? That your words can either bring life or death. उसमें लिखा हुआ है कि आपका मुंह से निकलने वाली बातें या फिर जीवन ला सकता है या विनाश ला सकता है या मृत्यु ला सकता है। Or it can bring blessing or curse. हो सकता है वो अनुग्रह और श्राप को या लेकर आ जाए। So what you say is very powerful. और जो आप बोलते हो वो बहुत सामर्थी शब्द है। How many of you, when you were smaller children or teen children, that someone said something about you that still sticks in your mind? आप में से कितने लोग में ऐसा है कि जब आप छोटे थे या कुमार अवस्था में या कुमारी अवस्था में थे तो किसी ने कुछ बात आपसे कहा, आज भी आपके दिमाग में वो चिपका हुआ है। Only one person? एक Two. ही व्यक्ति, दो ही तीन। व्यक्ति है, कभी बोला ही नहीं है। Yes. Maybe it was क्या? याद नहीं है, बोला याद है, नहीं है। ये बोला है लेकिन याद नहीं। याद नहीं नहीं, है। ऐसी कोई बातें जिसने आपको छू लिया, ठेस की बातें या प्रशंसनीय बातें। So when I was young, मैम जब जवान थी, young means when I was a child, मैम जब छोटी बच्ची थी, my father used to teach me math. और मैम के पिताजी उनको गणित सिखाया करते थे। And very often he was very impatient. और उनमें थोड़ा भी सहज नहीं था। And when I didn't get a sum right और अगर मैंने कुछ गणित में गलती कर दिया, in Malayalam, और मलयालम में he used to call me a donkey. वो मुझे मलयालम के भाषा में गधी बुलाते थे। Okay? Now I know that my father doesn't mean that.
अब मैं जानती हूँ कि वो मेरे पिता जो बोलते थे उसमें अर्थ रख के नहीं बोलते थे, but that time it really hurt me. लेकिन उस समय जो है मुझे वो ठेस पहुंचाता था। So we may say something out of our anger and our exasperation, कभी कभी जो है वो क्रोध में होकर क्रोध की भावना से होकर हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, but then it can affect us in the long term. और आगे वाले जीवन में बड़े समय के लिए वो हमें वो चीज हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है। So let's remember that what we say has a lot of impact. और हम जान जाएं कि जो हम बोलते हैं वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है, And we must only speak that which gives life and that which is positive. और हम उसी बातों को बोलें जो जीवन देता है और वो अच्छा है, And only words that are equal to the promises of God. और वही शब्द जो परमेश्वर के वादे के तुल्य है। So do you remember what your parents or your teachers said? क्या अब आप याद कर पा रहे हैं क्या आपके माता पिता या शिक्षकों ने कहा होगा? So right now you denounce it and speak what God says of you. और वो बातों को आप अपने जीवन से नकार दें और परमेश्वर आपके विषय में क्या बोलता है वो घोषणा कर दें। Okay? ठीक है? All right. Remember that your words can also either build or it can break. और आप ये एक बात याद रखें कि आपके मुंह से निकलने वाली शब्द वो बना सकता है या तोड़ सकता है। Let's read Romans chapter 10 verse 17. हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 10 का 17। विश्वास संदेश सुनने से आता है और संदेश मसीह का प्रचार करने से होता है। Okay, so what does it say? Faith comes from hearing. उसमें लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से आता है, So we should speak words that bring faith. और हमें वो बात बोलना है जो विश्वास को उत्पन्न करता है। So when you speak words of faith, you are helping to build faith in others. और जब हम विश्वास की बातें बोलते हैं तब वो दूसरे व्यक्ति में एक विश्वास को उत्पन्न करता है। Think of a time when you're crossing the road with a small child. आप ऐसी कल्पना करें कि आप एक छोटे बच्चे के साथ रास्ते को पार कर रहे हो। If you speak fear and say, be careful, a car will come and hit you. अगर आप उससे कहेंगे कि ध्यानपूर्वक रहना, एक कार आके आपको मार सकता है, Does it build faith? क्या वो उस बच्चे के अंदर विश्वास उत्पन्न करता है? Yes, it builds fear. वो डर को उत्पन्न करता है। So whatever we say, let us come to a place to build faith. और जो कुछ हम बोलें ऐसे स्थान पर आ जाएं जो विश्वास को उत्पन्न कर सके। Our words should also release faith. और हमारे शब्द जो है विश्वास को प्रकट करना है। Let's read Matthew 17:20. हम पढ़ेंगे मत्ती 17 का 20। उसने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। So Jesus taught this. यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया, And he showed that when you have faith in God, you must speak to the mountain. और उसने कहा कि जब आपके अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से आप बोलें। So we use the words of our mouth to release faith. और हम अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को विश्वास को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं। So when we release words of faith, we are believing that God will do what we have spoken. और जब हम विश्वास के वचनों को वाक्यों को बोलते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि जो बोला है परमेश्वर सिद्ध करेगा। The whole portion in James chapter 3 याकूब 3 के 3 अध्याय में talks about the tongue. वो जीभ के बारे में बोलता है। And I'd like you to look
through verses 2 to 12 और मैं चाहती हूं कि आप याकूब 3 के 2 से लेके 12 के अंदर ध्यान दें and tell me what James likens the tongue to. और बताएं मुझे कि याकूब जो है जीभ को किसके साथ सादृश्य करता है। Fire. आग, Then? Okay, think of a ship. What else? Think next verse. अगला पद, Sorry, what did you life say? ending poison, death poison. Tongue is like a poison. Tongue is like a poison. Okay. विनाशकारी विष, unrighteousness, Unrighteous. Yes. Okay. अधार्मिकता का। So it also talks about that the tongue is like the rudder in a ship. वो एक नाव में लगी हुई उसमें वही देख रहा हूँ, रडा। Verse 3. वर्स 3, No, verse 4. जहाज की It can be steered by पतवार के समान है जो नौके में लगता है, जहाज में लगता है। So the tongue is such a small organ, but it can move around such a big ship. और वो पतवार के समान है या उसके स्टीयरिंग जैसे जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, पतवार के समान है जो इतने बड़े जहाज को किसी भी दिशा में बदल सकता है। उसी प्रकार जीभ है। Or it says it is like a forest fire that starts with a small flame. और उसमें इस प्रकार से लिखा है, एक छोटी सी चिंगारी के समान है जीभ, जो छोटी दिखती है लेकिन पूरे एक जंगल को जला सकती है। Or it says it's like the bit in the mouth of a horse. और इस प्रकार से कहता है कि वो जो घोड़े के मुंह में जो नाल है उसके प्रकार। So it's saying even though the tongue is so small and insignificant, it actually can control a large part of our lives. और वो याकूब कहता है जीभ एक छोटी सी एक अंग है शरीर का, लेकिन हमारे जीवन को पूर्ण तरीके से वो नियंत्रित कर सकता है। So let us all be careful as believers हम विश्वासी चलते ध्यान पूर्वक रहें to use our tongue to speak life, और हमारे जीभ को इस्तेमाल करें ताकि प्राण के विषय बोले, to speak blessing, to speak faith. और विश्वास और जीवन के विषयों को बातचीत करें। Okay? ठीक है। All right. Another very powerful thing that we as believers have is to be able to speak a blessing over our family. और दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण बात है एक विश्वासी के चलते कि हम हमारे परिवार के ऊपर अनुग्रह के शब्दों को बोले। So shall we speak a blessing to our marriages? क्या हम हमारे वैवाहिक जीवन के ऊपर अनुग्रह की बातों को बोलें? Even if you are not married, you can speak to your future marriage. और अभी आप शादीशुदा नहीं हुए तो भी आपके आने वाले शादीशुदा जीवन के प्रति एक अनुग्रह की बातों को आप बोल सकते हैं। Now this is the blessing that the Lord told Aaron to tell the children of Israel. और आरन के द्वारा इजरायलियों के ऊपर बोलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह की बातें इस प्रकार से बोली। So let's read it. वो हम पढ़ेंगे। May the Lord bless you. फिर यहोवा ने can read रुकिए यहोवा तुमने Numbers 24 में यहोवा तुझे आशीष दें। Can you repeat it? आप भी देख के मेरे साथ बोलिएगा, यहोवा तुम्हें आशीष दें और तेरी रक्षा करें। यहोवा तुझ पर दया प्रकट करें और तुझ पर अनुग्रह करें। यहोवा तुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और तुझे शांति दे। Amen. So Amen.
Every day speak this blessing over your life and the life of your family. और हर एक समय जो है आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के जीवन के ऊपर इस वचन को घोषणा करते रहें। The last bit is to understand that God's word is a weapon against the devil. और हमें आखिरी बात जो याद रखना है, परमेश्वर का वचन जो है दुश्मन, हमारे दुश्मन के खिलाफत में एक हथियार है। Ephesians 6:17. Let's read that last verse. एफेसियों की पत्री 6:17 जो आखिरी है उसको हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। What is the sword of the Spirit? आत्मा का तलवार क्या है? वचन। The word of God. And you use the sword of the word of God against the enemy. और परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को आपके शत्रु के खिलाफत में इस्तेमाल करो। So no matter what temptations you are coming up with, चाहे कोई भी परीक्षा आपके विरोध में आने दो, what should we bring out? हमें क्या निकाल के लाना है? वचन रूपी तलवार। The word of God, which is the sword of the Spirit. और वो परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है। And that is the power that you and I have as believers. और वो शक्ति है मुझ में और आप में एक मसीही होने के नाते। All right? ठीक है? Amen? Amen. Okay, now we have 10 minutes and I want 10 questions. और हमारे पास 10 मिनट है और मैं 10 सवाल चाहती हूँ। Otherwise, I will ask you questions. अगर आपने 10 सवाल नहीं पूछा मुझसे तो मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी। आपको ही पूछना पड़ेगा। If there are any questions in the chat, ऑनलाइन में जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास अगर कोई सवाल है वो लोग भी हमसे पूछ सकते हैं। शादी कब कर सकते हैं? who asked me that? शादी कब कर सकते हैं? किसने पूछा? बहुत लोगों का बहुत लोग। सवाल है। कल मेरे से एक सवाल पूछा, कौन सा समय उचित है कि शादी किया जा सके। Okay. दूसरा एक और सवाल आया Okay. कि जब तक परमेश्वर हमसे एक दर्शन में बातचीत नहीं करेगा, means unless and until he speaks to us through a A vision, dream, can we get that? should we wait till the vision is given from the Lord? Okay. सवाल क्या सवाल? Okay. So, तो कभी करना है। तो शादी क्या समय हो, एज क्या है पूछ रहे हैं कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? So let me address the one thing. Let me address that. ठीक है, पहला क्वेश्चन का सवाल का जवाब। So first of all, there is, सुनिए, we don't look at a certain age for marriage, although by law, there is an age that is prescribed. और हम एक उचित उम्र तो देखते नहीं है शादी के लिए, लेकिन नियमानुसार, कानून अनुसार एक उम्र दिया गया है। 21 for men and 18 for girls. Now it is changed, right? Now it is 20. Now the Now it's reverse. all 18. Now 21 for girls and 24. both are girls. Yeah, 21. 21 for girls Equality. and men. All right. Equality. Okay. Now that does not mean because as soon as you reach 21, you are ready for marriage. इसका ये मतलब नहीं है कि 21 साल में आप पहुंच गए तो शादी के लिए तैयार हो गए। You have to grow in maturity. आपको परिपक्वता में बढ़ना बहुत जरूरी है। And what is that maturity? और वो परिपक्वता क्या है? We learned in chapter 2 yesterday. दूसरे अध्याय में, दूसरे पाठ में हमने सीखा था। Yeah, what did we learn? 7 ways of preparation for marriage. 7 तरीके जिसके द्वारा हम अपने आप को वैवाहिक जीवन में
डालने से पहले तैयार कर सकते हैं। So if you have prepared yourself adequately in those 7 areas, अगर वो 7 क्षेत्रों में अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया हो, you can feed yourself and you can feed the other person. आप अपने आप का खाने का प्रबंध कर सकते हो और आपके जीवन साथी का खाने का प्रबंध कर सकते हो, You know how to make decisions in your life. और अपने जीवन में किस प्रकार से निर्णय लेना है आपको मालूम है। You are stable in some work. आप अपने किसी ना किसी काम में स्थापित हैं, You have dealt with your emotional person. और आपके भावनात्मक व्यक्ति के साथ आपने सही कर लिया है, You are in a better mature place to get married. और आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के उचित परिपक्व रीति से हो। So don't go with age, go with maturity. आप उम्र के अनुसार ना जाएं, परिपक्वता के अनुसार जाएं। Okay? ठीक है, Answered? आंसर मिल गया, कौन सा उम्र सही है। Okay. All right. Okay. Third question, as per the societal rules, boys should be better than the girls. So, what is the very biblical perspective, or it can be possible the girls may be elder and boys may be? There is no biblical instruction about age gap between a boy and a girl. It Par- matters about their ability, their compatibility, and their maturity levels. और यहाँ पर उम्र तो किसी प्रकार का बाइबल में लिखा नहीं है। परमेश्वर जैसे पहले बोला, परिपक्वता, एक दूसरे के साथ सहयोग करके जीने की क्षमता, उसके ऊपर निर्धारित। वाइस वर्सा एज। So the fact is that girls become more mature than boys. और तथ्य ये है कि लड़की जो है लड़के से पहले परिपक्व मतलब हो जाते हैं। So the boy and the girl of the same age, you may find that the girls are more mature than the boys. और May. It's a एक- general rule. और एक ही उम्र के अगर दो लोग शादी करते हैं तो आप साधारण रीति से आप देखेंगे कि लड़की जो है लड़के से परिपक्व है। But there can be exceptions. लेकिन कुछ समय है, कुछ है कि उसमें भी अलग बात हो सकती है। Okay, what is the second question? विजन, Someone said Darshan. vision. Okay. should we wait till God says in a vision you marry? That was a question yesterday asked to me. Okay. I didn't have a vision when I got married. मैम को एक दर्शन नहीं मिला था कि जब उनको शादी करना था। God put a desire in my heart. परमेश्वर ने मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न किया, And I prayed about that desire. और उस इच्छा के प्रति मैंने प्रार्थना किया, And I asked the Lord for God's will to take place in my life. और मैंने परमेश्वर की हित को मेरे जीवन में होने के लिए मैंने प्रार्थना किया। I don't think it is necessary you should have a dream and a vision about the person you're going to marry, what clothes he or she will wear. That is not necessary. ऐसा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के बारे में एक दर्शन मिले कि वो व्यक्ति कौन होगा जिसके साथ मुझे शादी बनाना है, वो कौन सा वस्त्र पहन के आएगा या आएगी, इसके विषय में दर्शन होना या सपना देखना जरूरी नहीं है। Answered? ठीक है, Okay. Yes, next question. He had the question about या वो Age. आपका क्वेश्चन क्या था? मीन्स किड्स मैरिज इज नॉट हैपनिंग एंड देयर एज इज ग्रोइंग, सो व्हाट? Christy question. interesting question. Maybe you should ask why. You should know why is it that the marriage is not taking place. और हमें सवाल उठाने की जरूरत है, क्यों शादी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो इतना उम्र क्यों बीत रहा क्या है, कारण? What is the reason why they don't want to marry? क्यों उम्र बढ़ता जा रहा है, उनको शादी नहीं करना, वो ढूंढने की जरूरत है। Is it because they're not getting a person to marry? क्या ऐसा एक सवाल, क्या उनको एक शादी करने के लिए एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है? सवाल एक। Or is there some kind of
some kind of a problem that they're facing and that's why they don't want to get married. या फिर कोई वो परेशानी से गुजर रहे हैं जिसके द्वारा जिसके कारण से वो शादी अभी नहीं करना चाहते हैं. So understand the reasons why maybe an older boy or a girl is not getting married. There are many youths, लेकिन ये सब सवाल जो है हमें पूछने की जरूरत है. हम हमारे नजरिए से या उससे किस कारण से ये सब नहीं हो रहा है. क्या उसको वो व्यक्ति जिसके साथ लड़का हो या लड़की हो, एक लड़का नहीं मिल रहा हो या लड़की नहीं मिल रहा हो, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हो, कोई परेशानी जिसके कारण से कुछ लोग नहीं शादी करना चाहते. Maybe they don't want to get married हो also. सकता है कि उनको शादी ही नहीं करना हो. हाँ? नहीं, कभी कभी उनको शादी ही नहीं करना, जितना भी आप कहो. What? I didn't follow. इच्छा is there. Ichha is there, but but no, not happening. not happening. अभी आपने एक 2-3 मैंने तीसरे अध्याय में कहीं पढ़ा था कि Single पुराने जो रिश्ते होते हैं प्रेम, उसमें से मिला हुआ घाव के कारण कुछ लोग भरोसा नहीं रख पाते, उसके कारण शादी में ना बोल के आगे बढ़ाते रहते हैं. तो मैम ने सिखाया था वो सारे बातों को, पुरानी बीती हुई बातों को, ये सब चीजों में से विजय प्राप्त करना है, उसको सब छोड़ना है. कई चीजें हैं शादी करने से पहले तैयारी में हमने सीखा था कि त्यागने की जरूरत है. तो कभी कभी उनका कुछ होगा जो उनको रुक रहा हो, भरोसा का प्रॉब्लम हो सकता है. यस, आपने कुछ. There will be a lot of demands because of that. Can be, yeah, it is there. Demands on them. Yes, they may be holding a entire family responsibility. Yes. कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगा. There is a question here. Can we pray for a particular person? We like someone and that person likes another person. So can we pray for that person? यहाँ पर एक सवाल ध्यान से सुनेगा, कल का सवाल इसमें भी कनेक्टेड है. यहाँ पर एक सवाल है, क्या मैं एक निर्धारित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं लेकिन वो और किसी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं. Okay. सवाल समझ में आया? हाँ 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 हाँ. Oh, Interesting question. हाँ 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 हाँ. okay. Now, if you like, सुनिए उत्तर सुन लीजिए. if you like somebody and you are praying for that somebody and they like someone else, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसके विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को पसंद करता है, please leave them. उनको अपने हाल पे छोड़ दो. What? Whose prayer God will listen? That was, It is your remember, you cannot act on the free will of somebody else. और आप उनके खुली छूट के ऊपर, किसी और व्यक्ति के छूट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो. So if you find they are interested in somebody, it is the best thing to let them be with that somebody. और अगर आप जान जाते हैं कि उस व्यक्ति को कोई और पसंद है, उचित होगा उसको वो व्यक्ति के साथ जाने दो. And ask the Lord to open your heart to someone else. और आप परमेश्वर से पूछें कि प्रभु किसी और व्यक्ति के साथ मेरा हृदय खोल दे. She's a very insistent person. But ma'am, can't we pray and ask God to fulfill our desire? और सवाल है कि मैम क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु हमारी इच्छा को पूरी कर दो? If you want to do that, you can do that. अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. But when God is showing you a way this side, it will be good that you are obedient to that call. अगर प्रभु एक भाग दिखाता है स्पष्ट रीति से तो अच्छा होगा जो प्रभु बोलता है उसकी आज्ञा को मान लो. Because you are opening yourself to more pain सुन लीजिए, and hurt when you continue to ask God to fulfill a desire which He's showing you
that may not be the best for you. और आप क्या करते हैं इसके इस समय पर अपने आप को ज्यादा घात पहुंचाने के लिए, शारीरिक नहीं मानसिक घात पहुंचाने के लिए खोल देते हैं, क्योंकि उस दूसरी तरफ से तरीका अलग है। इस कारण से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा घात पहुंचाने के लिए खोल देते हो। Okay? ठीक है, I hope I answered that. विश्वास करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया है। Okay, shall we close with a word of prayer? I'd like one of the students to pray today. आज Question. Tomorrow? You'll keep the question for tomorrow? लिख लीजिए उस क्वेश्चन को, रख लीजिए ठीक कल है? सूची में। All right. और Okay. you want them to pray from this side? Yes, somebody can pray. Last one question. Okay, Insisting. all right. Yeah. Wow. See, it really matters the culture that you are coming from. और आप किस संस्कृति को के भाग हो, वो बहुत मुख्य बात है। In Bangalore, maybe the answer will be very different. बैंगलोर के संस्कृति के हिसाब से देखो तो उत्तर अलग होगा। But if I say, in your culture, you do, if God has called you and you should go ahead and do that, then your whole community will come after Brother Biju and me. अगर मैं उसका जवाब हाँ करके बोल दूं, तो आपके संस्कृति के लोग सब हमारे विरोध, हम दोनों के विरोध में आ जाएंगे, हो Right? सकता है। But like in a smaller village, it matters to have the approval of the larger community that you are living in. और एक छोटे गांव के जो रीति से अगर देखा जाए तो उचित होगा कि उधर के जो बड़े समूह है उनकी अभिप्राय को भी ले ले। Right? If that doesn't happen, speak to the elders of your church. और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके कलीसिया के बुजुर्गों से बातचीत करें। And make them intervene with your parents. और आप अपने माता पिताओं के साथ इनके द्वारा बातचीत करवाएं। Okay? All right. ठीक है, Can we pray? Can somebody pray today? इस साइड से कोई प्रार्थना करें। माइक दे दीजिए, वहां पे है माइक, वहां पे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं राफा, एक बार फिर से प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। ये सुबह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी सीखा है प्रभु पिता उसको सुनने वाले नहीं प्रभु, उस पे चलने वाले बने। इस सुबह प्रभु जी जब हम जितना भी हमने सीखा है प्रभु, और प्रभु हम सीख के अपने घर पे जाते हैं प्रभु, वहाँ पिता परमेश्वर बड़ी बेदारी का कारण बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं राफा, यहाँ जितने भी लोग हैं हर एक को यीशु पर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ छोटी सी बिंदी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Thank you. Good night. Over to Pastor Francis. धन्यवाद, शुभ रात्रि। पास्टर फ्रांसिस को जिम्मेदारी। चेक। ओके, अब सब लोग शादी के लिए तैयार हैं?